انتہائی خوشی و مسرت و شادمانی کے ساتھ یہ بات آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں۔ یہ بات بتاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آپ تمام حضرات کو بھی انتہا خوشی ملے گی کہ ہمارے اس گاؤں کے اندر، ہمارے شہر اور قصبے کے اندر جو ایک نظام تعلیم کا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس کی تکمیل کے لیے اس حقیر فقیر سراپا تقصیر کو کھڑا کیا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی خوش ہوں گے کہ ہمارے اسکول اور کالجوں کے وہ بچے جو میٹرک انٹر وغیرہ کرنے کے بعد اپنی اپنی مصروفیات میں منہمک ہو جاتے تھے، اپنے مشغولیت میں لگ جایا کرتے تھے، اور دینی تعلیم سے ان کو کوئی پھر مطلب برقرار نہیں رہتا۔ دینی تعلیم کی طرف نہ کوئی ذوق، نہ شوق، نہ کسی طرح کا کوئی رغبت ان کے ذہن، دماغ، دلوں میں کوئی ہوتا۔ ہم نے اللہ کا شکر ہے اسکول اور کالج کے بچوں کو بڑے تگ و دو کے بعد میں نے ان کو قبضہ کیا اور میں نے چند سالوں سے ان کو اپنا بنایا اور پکڑ کے اپنے آشیانے میں لایا، اور میں نے چاہا کہ تم نے دنیا کی تعلیم بہت حاصل کیا، اب آؤ ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیم بھی حاصل کر لو۔ اس کے لیے ہمارے یہاں یہ بات پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ حضرات کو جو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ حضرات کتنے زیادہ مبارکبادی کے لائق ہیں اور کتنی زیادہ خوش قسمت لوگ آپ حضرات ہیں۔ یہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اپنے طلبہ کے درمیان ایک حدیث بیان کرتے تھے، اور اس حدیث کے درمیان فرمایا کرتے تھے طلبہ کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو سیکھنے والے، سکھانے والے، پھیلانے والے، بتانے والے، نافذ کرنے والے۔ اور اس حدیث کے ٹکڑا سے اپنے طلبہ کو حضرت یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو، طلبہ کو نصیحت کر رہے تھے، اور فرماتے تھے کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے نبی محمد رسول اللہ کے چاہنے والے دیوانوں اور ان کے دین اور شریعت کو ماننے والے، سیکھنے والے، پھیلانے والوں، اے علماء کی جماعت، اے علماء کی تنظیم، اے علماء کی گروہ، میں نے تجھے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور علم تیرے سینے میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تجھے عذاب دوں، میں نے تیرے دل اور سینے میں اپنے لاڈلے نبی کا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تجھے کوئی سزا دوں، میں تجھے ذلیل کروں، میں تجھے لوگوں کے سامنے رسوا کروں۔ کیا میں نے تمہیں اس کے لیے علم دیا تھا، اپنے نبی والا علم؟ نہیں، میں نے نہیں دیا تھا۔ اے میرے نبی کے دیوانوں، اے علماء کی جماعت، اے علماء کی گروہ، فانطلقوا، چلو جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ تمہیں رسوا کرنے کے لیے میں نے دین دیا تھا، یہ نبی کی تعلیم تیرے سینے میں پہنچایا تھا؟ نہیں، میں نے تجھے عزت دینا تھا، اس لیے جاؤ، فانطلقوا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اور یہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ ان کے سارے جتنے گناہ تھے، ان کے سیئات کو حسنات میں مبدل کر دو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ میں نے اپنے اس بندے کو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت دیا تھا تاکہ اس کو قیامت کے دن تاجدار بنائیں، تاج پہنائیں، اور اس کو عزت اور شرافت کا، اس کے سروں پہ دوپٹہ اور سروں پہ تاج دیں۔ اس لیے میں نے تجھے نبی کا دین دیا تھا۔ آج آپ حضرات کو بڑی خوشی مل رہی ہوگی، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے وہ بہت سارے بچے بچیاں جن لوگوں نے قرآن مقدس کی مخصوص صورتوں کا حفظ کی اور کیا، اور ہمارے وہ بچے جن لوگوں نے قرآن کریم کے مخصوص
सूरतों के तफासिर भी सुने, पढ़े। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे दिनों तक उसके तफासिर ज़बानी याद भी किए, तर्जमा याद भी किए और उसको ज़बानी उन सूरतों को हिफ्ज़ भी किए। तो उर्दू के अलावा हिंदी भी आपने पढ़ा, इंग्लिश भी आपने सीख ही लिया और अरबी भी आपने कुछ न कुछ उनसियत के बकदर आपने जाना और सीखा और तफसीर हिफ्ज़ कुरान करीम आपने सीखा। हमारी ये दिली ख्वाहिश और तमन्ना थी कि अब आप हजरात को फ़ारसी भी पढ़ा दी जाए, चूँकि हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारे यहाँ ये निज़ाम नहीं है कि बच्चों को फ़ारसी सिखाई जाए। फ़ारसी को तो अब लोगों ने कफन पहना करके कब्रिस्तान में दफन ही कर दिया है। अब फ़ारसी तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम मुस्लिम बच्चों को और बच्चियों को अब उर्दू नहीं आती है, फ़ारसी तो बहुत दूर की बात हो गई, बहुत हाई लेवल की बात हो गई। वो उर्दू के सिलसिले में बड़े बड़े मुहक्किक की राय ये है कि उर्दू एक ऐसी जुबान है जो दुनिया के हर मुल्क में चलती है। उर्दू एक ऐसी जुबान है, आपको हैरत होगी सुन करके, अमेरिका, इंग्लैंड, जहां के अखबार अधिकतर इंग्लिश छपा करते हैं, जहां का अखबार निकलता इंग्लिश में है और इंग्लिश अखबार का जहां चलन हो, अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश, वहां भी उर्दू अखबार छप रहा है। हैरत की बात नहीं है? उस मुल्क में जहां इंग्लिश का ही चर्चा हो, बच्चे जन्म ले ही तो इंग्लिश में रोए, बच्चे पैदा ले इंग्लिश में रोए, उस शहर और देश में उर्दू में अखबार छप रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि हमारे शहरों में, हमारे कस्बा में, हमारे इलाके में बाज दुश्मनाने इस्लाम उर्दू को मिटाने के लिए हर दर्जा कोशिश कर रखे हैं और हमारे मुस्लिम कौम की जो बच्चे बच्चियां हैं, इन लोगों ने भी पूरी कोशिश की है कि हमने उर्दू सीखना ही नहीं है। अब आप कहेंगे कैसी बात आप कर रहे हैं? हम सही बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। आज हमारे समाज के जो बच्चे और बच्चियों की जो हालात है, उर्दू सही से रीड करने नहीं आ रहा। उर्दू जुबानी 2 सतर लिखने के लिए बच्चे कासिर हैं। एक पैराग्राफ 4 लाइन 5 लाइन का पैराग्राफ बच्चे पढ़ने के लिए उससे इतने कासिर हैं, इतने आजिज है कि आपको सुन के हैरानगी होगी। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो है हमें इस जगह पे इस काम के लिए जोड़ दिया है कि जिस दौर में लोग उर्दू का जनाजा निकाल रहे हों, जिस दौर में लोग उर्दू को मिटाने के लिए और जगह जगह से हटाने के लिए हद दर्जा कोशिश कर रहे हों, ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक घड़ी में, ऐसे नाजुक जगहों पे बैठ करके उर्दू की आबियारी के लिए तुम हो जाओ। और हमारे बुजुर्गों की दुआएं शामिल रही। अल्लाह पाक का एहसान और करम रहा कि हमने चंद सालों से जो उर्दू के नाम पे जो मेहनत, लगन, कोशिश और मुजाहिदा जो हमने बच्चों के साथ करने में हाथ लगाया, अल्लाह का शुक्र है हम बहुत सफल हो रहे हैं और हम बड़े कामयाब होते नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारे 5 साल 8 साल के इस मुजाहिदा और इस मेहनत की वजह से बहुत सारे वो बच्चे और बच्चियां जिनके बारे में कोई उम्मीदें नहीं थी, जिनके बारे में कोई भरोसा नहीं था, वो हमारे बच्चे और बच्चियां भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अच्छी बोलते हैं, उर्दू अच्छी पढ़ लेते हैं, उर्दू अच्छी लिख भी लेते हैं। अब ये वक्त आया था कि आप हजरात को फारसी भी पढ़ा दी जाए। तो हमारी ख्वाहिश ये हुई कि चूंकि जमाना ने ये नहीं देखा कि स्कूल और कॉलेज के वो बच्चे जिनको मैट्रिक इंटर के बाद सिर्फ घर से मतलब हो, लड़के कमाने के लिए चले जाएं और लड़कियां घर बैठ करके घर संभालने में हाथ लगा दे, तो ऐसे नाजुक वक्त में क्या स्कूल और कॉलेज के बच्चे वो किताबें पढ़ेंगे और मुफ्ती साहब वो किताबें पढ़ाएंगे जो किताबें दारुल देवबंद के निसाब में शामिल हो? क्या मुफ्ती साहब वो किताबें बच्चों को पढ़ाएंगे कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों को जो किताबें उलमा बनने वाले हमारे तलबा पढ़ा करते हैं,
क्या मुफ्ती साहब वो किताबें पढ़ाएंगे अपने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को जो पड़ोसी मुल्क के बीए के निसाब में दाखिल है? आप उठा के देख लो किताबें, बीए के निसाब में जो दाखिल है वो हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चे हमारे इस कोचिंग में वो किताबें पढ़ेंगे। ये बीए के सिलेबस में दाखिल है, ये बीए के निसाब में दाखिल है। अब वो किताबें पढ़ेंगे, लोग हैरान होंगे कि दीगर ममालिक में जहां सिलेबस और निसाब में जो दाखिले निसाब हो वो किताबें हमारे इस पुरफितन दौर में जहां उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले, ऐसे वक्त में वो नाजुक घड़ी में लोग नेमत साहब आप जो है स्कूल और कॉलेज के बच्चे और बच्चियों को ये गुलसिता पढ़ाएंगे। हम लोग जब आलमियत का कोर्स करने गए, हम लोग क्या पूरी दुनिया जब आलिम बनने के लिए जाते हैं तो उनको इब्तदाई दर्जात में ये किताबें पढ़ाई जाती है, ये पंदनामा ये किताबें पढ़ाई जाती है, और ये तैसरुल मुब्तदी ये किताबें पढ़ाई जाती है। ये सारी की सारी फारसी की किताबें हैं। अब ये हैरत की बातें है या नहीं है कि स्कूल और कॉलेज के वो बच्चे जिन्होंने उर्दू को भी खिलौना समझ के भुला दिया और ऐसे भुला गए यूं समझ बैठे कि हमें इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। इस दौर में मेरे बच्चों और बच्चियों, इस दौर में आप हजरात ये कुरान मुकद्दस का हिफ्ज और फिर उसके तफासिर और फिर उसकी तशरीहात, फिर उसके तर्जमा और फिर उसके बाद उर्दू, फिर उसके बाद अरबी ग्रामर, फिर उसके बाद मिनहाजुल अरबिया, फिर दिगर कुछ कुतुब अरबिया, फिर इसके अलावा फारसी की वो मेयारी किताब शेख सादी की जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी, वो किताबें ये बच्चे पढ़ेंगे। बताओ आप हजरात मुबारकबादी के लायक हैं या नहीं है? अल्लाह जरूर है। हमारे इस बयान के जरिए से उम्मीद है लोग जागरूक होंगे और लोगों को शौक इंशाअल्लाह जागेगा और उनके ज़ौक एक नए उमंग लेकर के हमारे इस आशियाने तक पहुंचेंगे। और ना भी पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे ये बच्चों की संख्या अल्लाह का शुक्र है कम नहीं है। भाई हम तो वो उलमा की औलाद हैं, हम ये जानते हैं क्या कि देखो क्वांटिटी के चक्कर में दुनिया मर रही है, हम क्वालिटी के चक्कर में मर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ चंद बच्चे ही होंगे, मखसूस होंगे और क्वालिटी वाले लोग होंगे, मेयारी बच्चे होंगे। हम इसी को इंशाअल्लाह मेयार तक पहुंचाएंगे और बनाएंगे और दूर तक पहुंचाएंगे। और हमारा ये दिली अरमान है कि जिस वक्त ये मेयारी और क्या कहते हैं ऊंचे तबका के और होनहार और विद्वान और आली मकाम खवातीन के नाम जहां पे लिए जा रहे हों वहां हमारे इन बच्चियों के नाम लिए जाए, हमारे इन बच्चों के नाम लिए जाए कि ये लोग भी मेयारी हैं। और इंशाअल्लाह ये किताब गुलसिता हज़रत शेख सादी रहिमहुल्लाह की और तैसरुल मुब्तदी और फिर ये पंदनामा, इंशाअल्लाह इन किताबों के ज़रिए से आप हजरात को आरास्ता पैरास्ता करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लगन और शौक़ के साथ इन किताबों को पढ़िए। हज़रत यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह की फिर वो हदीसें जो तलबा के दरमियान अर्ज़ किया करते थे, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हज़रत ने बच्चों को हौसला दिया है, कल क़यामत के दिन तुम्हें यह पता चलेगा जब अल्लाह कहेंगे कि इनके सय्यात को हसनात में मुबद्दल कर दो और मैंने तुम्हें इसलिए अपने नबी की शरीयत और नबी की तालीम तेरे सीनों में पहुंचाया था कि तुझे रुस्वा और बदनाम करूं। ना ना ना, फंतलिकू, तू जन्नत में चले जाओ, इनके पाप को नेकियों में बदल दो। उस वक्त इंशाअल्लाह हमें अपनी औकात नजर आएगी कि हमारी क्या औकात है, हमारी क्या शान है। आज तो इस नाजुक और पुरफितन दौर में हमें यह पता नहीं चलेगा ना हम फारसी पढ़ के करेंगे क्या, कौन सा जॉब मिल जाएगा, हम फारसी पढ़ के कौन सी नौकरी ले लेंगे। हम नौकरी के लिए कभी नहीं पढ़ते हैं, हम खुदाए पाक की रजामंदी के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। इंशाअल्लाह फारसी अच्छी होगी, उर्दू अच्छी होगी, उर्दू अच्छी होगी, कुरान व हदीस का तर्जमा पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। और हमारी उर्दू कमजोर होगी, फारसी ना आएगी तो फिर हम कुरान हदीस को सही से पढ़ेंगे मगर हमें पढ़ने नहीं आएगा, पढ़ने आने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, समझ में नहीं आएगा। जब ये दो किताबें उर्दू और फारसी
ٹھوس ہوگی، مضبوط ہوگی، اور انشاءاللہ تو پھر ہمیں تفسیر پڑھنے میں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے میں، احادیث مبارکہ کی تشریحات پڑھنے میں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، اور شوق کے ساتھ پھر پڑھیں گے، پھر ایک رغبت اور دلچسپی جاگ اٹھے گی کہ نہیں پڑھنے میں مزہ آ رہا۔ ابھی ہوتا کیا، ترجمہ اس لیے نہیں پڑھتے، تفسیر اس لیے نہیں پڑھتے کہ 2 سطر 4 سطر پڑھتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ اردو کچھ ہارڈ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مطلب جو اس کے مین ماخذ ہوتے ہیں سمجھ نہیں پاتے، اس کے مراد تک نہیں پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کیا کہتے ہیں اپنے آپ میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ الجھنیں سب ختم ہوں گی، اور ایک وقت آئے گا ہمارا سینہ، ہمارا دل قرآن و حدیث کے علم سے، روشنی سے معمور ہوگا، انشاءاللہ منور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا